Welcome back. Welcome back to summer classes. And now we are going further for our study. Now, next topic is Coulomb's law in a vector form. Coulomb's, sorry, Coulomb's, Coulomb's law, Coulomb's law in vector form. Okay. Coulomb's law in vector form. ठीक है. देखिए, let us consider that there are two charges q1 and q2. There are two charges q1 and q2. Okay, then they have the same sign and placed at a distance of r, at a distance of r from each other. Okay, in a vacuum. So the force F12, F21, F21. Let us consider that the force F21. This F21 is on Q2 due to Q1. Hence F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square R21 vector. Sorry, unit vector. Okay, this is a unit vector. This is a unit vector pointing from Q1 to Q2. This is a unit vector pointing from Q1 to Q2. Okay. Similarly, if we consider about now from the Q2 to Q1, then अगर हम लोग Q2 से Q1 की ओर अगर हम लोग कंसिडरेशन करें, तब फोर्स in this direction F12, then we can write, हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कि F12 vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square R12 unit vector. Here this is a unit vector and its direction is toward Q1. इसकी जो डायरेक्शन होगी वो Q1 की ओर होगी. ठीक है. ओके, नाउ अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को देखें, या अगर हम इक्वेशन नंबर 1 माने और इक्वेशन नंबर 2 माने, और अब चाहते हैं हम लोग अगर इसको कि हम लोग आर वेक्टर के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, तो इसी इक्वेशन को हम लोग दिखा सकते हैं इस तरह से. हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इट कैन आल्सो बी रिटन एज, इट कैन आल्सो बी रिटन एज F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon RQ R21 वेक्टर. एक बात ध्यान कर लीजिए, क्या होता है, देखिए ऐसा होता है ना, R जैसे R21 है, R21 यूनिट है, यूनिट वेक्टर है, तो इसको ये लिख सकते हैं हम लोग R21 वेक्टर अपॉन R, ये लिख सकते हैं. तो इसी तरह से मैंने, इसी वजह से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह लिख लिया है. अब सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन का जो वैल्यू होगी इस तरह से आएगी, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon RQ R12 vector. Okay, these equation can also be written as these equations. Okay, this is called the Coulomb's law
in vector form. This is a Coulomb's equation in vector form. Okay. Now we have to consider about the importance of this law in the vector form. If you consider about the diagram, then you can see that this is the Q1 and this is the Q2. Okay. First of all, I have written that, like that, importance of Coulomb's law in vector फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में क्यों जरूरी है? देखिए Q1 एंड Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, सेम साइन के चार्जेस हैं, इसी वजह से ये रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेंगे. अब ये देखिएगा, इसकी बी की डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी R थी. ठीक, फोर्स जो Q1 से Q2 के ऊपर लग रहा होगा. ठीक है, फोर्स विच वॉज एक्टेड ऑन Q2 इज F21 vector. Okay, and similarly force due to this is F12 vector. Okay, this shows that here we can see that first thing here we can see that R12 vector is opposite to this. यहाँ जो R2 वो 1-2 वेक्टर होगा, ये देखिए, आप देखिए R21 वेक्टर, R21 and R12. Here you can see that R12 and R21 is in opposite direction, and here so we can say that F12 is equal to minus F21. This is the law. This is the Newton's third law, and here Coulomb's law follow the Coulomb's law follow the Newton's third law. Here Coulomb's law follow the Newton's third law, which says that every action has the equal and opposite reaction. This Coulomb's law definitely says that the Newton's third law is satisfied. Second point, second importance is that here we can see that F21 and F12 and F12 are both on the same line. They both are on the same line, and they are towards something. Here we can say that it is a central force. It is a central force. We can say Coulomb's law is a central force because it is toward or from the center of the charges. Okay, and they are on the same point, on the same line. They are on the same line. ये दोनों ही सेम लाइन के ऊपर हैं. दूसरी बात, सेम लाइन के ऊपर होने के साथ साथ ये दोनों जो है या तो उसकी तरफ से निकल रहे हैं या एक की ओर जा रहे हैं. तो ये सेंटर की ओर जा रहे हैं या सेंटर से जा रहे हैं दूर की ओर. तो इसी वजह से ये सेंट्रल फोर्सेस हैं. ओके, now I am saying about the superposition law in Coulomb's law. Force is between multiple charges
charges, multiple charges and superposition principle. Superposition principle. ओके, जाएंगे, कोशिश करते हैं. देखिए ऐसा होता है जैसे कि कोई एक चार्ज है, मान लीजिए Q1 चार्ज है, ठीक है. यहां मैंने एक Q2 चार्ज ले लिया, यहां मैंने एक Q3 चार्ज ले लिया, यहां मैंने Q4 चार्ज ले लिया एंड सो ऑन. कितने भी चार्ज ले सकता हूं. इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो ये आया, मतलब यहां पे फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है, F21. इसकी वजह से जो फोर्स आया वो ये आया F31, और इसकी वजह से फोर्स आया Q4 की वजह से, वो आया होगा इस डायरेक्शन में, सॉरी F41, ठीक है. ये लॉ ये कहना चाहता है कि ये तीनों ही जो फोर्सेस होंगे, जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये लॉ ये कहना चाहता है कि ये तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम जो होगा इसके ऊपर लगने वाले एक डेफिनेट एक फोर्स के बराबर हो जाएगा. अब देखिए ये इस तरह से एक फोर्स निकल के आएगा F, जो इन तीनों का वेक्टर सम होगा. ये जो लॉ है ये इस बात को समझाना चाहता है. इसका स्टेटमेंट क्या है जरा आप समझने की कोशिश करिएगा. स्टेटमेंट क्या कहता है इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, यह देखिए. स्टेटमेंट ये कहता है इफ अ सिस्टम कंटेन्स अ नंबर ऑफ चार्जेस, if a system contains a number of charges, okay, then net force acting on that charge, on a charge, is vector sum of all forces exerted due to the other charges. Okay, इसका मीनिंग ये कहने का है, हिंदी में अगर समझने की कोशिश करें तो एक सिस्टम में अगर कई सारे चार्जेस हैं और उन सभी चार्जेस पे देखा जाए तो जो फोर्स एक इंडिविजुअल चार्ज पे लगने वाला है वो सभी चार्जेस की वजह से लगने वाले, जो सभी दूसरे जो चार्जेस हैं उनकी वजह से लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है. ओके, ये है इसका स्टेटमेंट. अब इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा. समझने की कोशिश ये करिए कि सपोज करिए कि एक सिस्टम है, उसमें Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट Qn चार्जेस हैं, n चार्जेस है, ठीक है, Qn चार्जेस है. ओके, तब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहेगा, क्या ये कहेगा कि जो F पे लगने वाला जो फोर्स है, F पे लगने वाला जो फोर्स है ना, वो ऐसा हो जाएगा F21 प्लस F31 प्लस F41 डॉट N1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है. वेयर F21 is equal to force due to Q2 on Q1 and so on. मतलब इसी तरह से है कि F21 जो है वो फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q1, इसी तरह से F31 जो हो जाएगा फोर्स ड्यू टू Q3 ऑन Q1, F41 जो हो जाएगा फोर्स ड्यू टू Q4 ऑन Q1, Fn का मतलब हो जाएगा फोर्स ड्यू टू Qn ऑन Q1, ठीक है. इस तरह से निकल के आ जाएगा. तो इस इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज F1, यानी पहले में लगने वाला फोर्स जो है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 अपॉन R21, ठीक है.
R21 का स्क्वायर, अच्छा R21 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 R31 का स्क्वायर R31 वेक्टर वो एंड डॉटर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 सॉरी Q1 नहीं Q1 R(n1) स्क्वायर R(n1) वेक्टर यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा एफ की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि F2 जो होगा यानी बाकियों की वजह से जो दूसरे पे लगने वाला फोर्स होगा, यानी दूसरे चार्ज यानी Q2 पे लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो इस तरह का आएगा। अच्छा 3-2 ठीक है, इस तरह निकला आएगा। इससे आपको ये समझ में आने की कोशिश रहती है कि इससे एक बात समझ में आ रही है आपके कि किसी भी here the force exerted by two charges on each other is not affected by the others। एक बात जिसमें समझ में आने की कोशिश करी होगी, दो चार्जेस के ऊपर लगने वाला, दो चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स जो है वो बाकी उसकी वजह से अफेक्टेड नहीं हो रहा। बस हो क्या रहा है कि इन सभी चार्जेस के अलग अलग फोर्सेस के हम लोग वेक्टर सम कर ले रहे हैं और हम लोग एक रिजल्टेंट फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जो है आगे की बात समझने की कोशिश करेंगे और अब जो है थोड़ा मैं चैप्टर के अंदर जो हो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना शुरू करूंगा और उसके रिलेटेड चीजों को बताना शुरू करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। ओके।